رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. وہ ہے کہ اس کو ناقدری عالم کا صلہ کہتے ہیں. مر گئے ہم تو زمانے میں بہت یاد کیا. جناب چیئرمین، آج بہت ہی اداس دن ہے پاکستان کی پارلیمان کی تاریخ کا، کہ ویسے تو ہر شخص نے جانا ہے، اس میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہے. کس نے کب جانا ہے کب نہیں جانا یہ کسی کو بھی ظاہر ہے نہیں پتا. لیکن کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، انہیں بھول بھی جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے نشانات چھوڑ کے جاتے ہیں اور ان کو بھولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حاصل بزنجو صاحب کے والد، ان کی بڑی بات ہے، غوث بخش بزنجو صاحب بہت بڑی نابغہ روزگار شخصیت تھے. ان کا بڑا اہم کردار پاکستان کی سیاست میں. 1970 میں وہ نیب میں تھے اور نیب بہت بڑی پارٹی تھی اس وقت. نہ صرف 2 صوبوں میں انہوں نے 70 کے الیکشن میں، بلوچستان میں تو لینڈ سلائیڈ رکھی ہوئی تھی، لیکن اس زمانے میں فرنٹیئر تھا تو وہاں پہ بھی جے ای آئی اور ان دونوں پارٹیوں کو اکثریت ملی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیب جو تھی وہ ایسٹ پاکستان میں بھی بہت مؤثر جماعت تھی. مولانا باشانی اور پروفیسر مظفر، ان دونوں کے بعد میں دھڑے علیحدہ علیحدہ ہو گئے تھے، لیکن یہ دونوں بہت طاقتور لیڈر وہاں کے کہلاتے ہیں. خیر میں لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا. میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ویسے تو بہت ساری قسمیں ہیں، 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو نظریہ پرست ہوتے ہیں اور اصول پرست ہوتے ہیں اور ہمیشہ نظریے کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے لیے ہر قسم کی قیمت دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں. دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو مادہ پرست ہوتے ہیں. وہ میٹیریل کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور میٹیریل کے لیے پیچھے بھاگنے کے لیے قیمت نہیں ادا کرنی پڑتی، لیکن اپنا نظریہ جو ہے اس کی قیمت پہ آپ جو ہے وہ مادہ جو ہے وہ اکٹھا بھی کر لیتے ہیں. اور بہت ساری باتیں اس پہ ہو سکتی ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ زندہ وہ لوگ رہتے ہیں جو اپنے نظریے پہ کاربند رہتے ہیں اور اس کے لیے قربانی دیتے ہیں اور عوام کی بات کرتے ہیں، اور بات کرتے وقت وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو حاصل بزنجو کی جو زندگی ہے اس کے لیے ایک مسئلہ تھا کہ وہ ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا، اور نارملی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی کے باپ کی اگر اسٹیچر بہت بڑا ہو تو بیٹے کو اپنا مقام بنانا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن وہ ہے نا کہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ. حاصل بزنجو نے اپنی جدوجہد، کراچی سے ان کا بڑا خاص تعلق تھا، وہاں پہ اسٹوڈنٹ لیڈری انہوں نے کی اور بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بہت ساری جیلیں کاٹی. انہوں نے کہا ایک دفعہ کہ 3 صوبوں کی تو میں نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں، پنجاب کی جیل نہیں کاٹی ہوئی. اسی طرح ان کے والد کا بھی یہی سلسلہ تھا. اس زمانے میں ذرا تکالیف زیادہ بھی تھی. اس زمانے میں حق بات کرنا بڑا مشکل تھا، سچ بولنا مشکل تھا. جو بولتے تھے اس زمانے میں بھی لوگ، لیکن پھر اس کی وہ مطلب کہ انہیں سزا بھی بھگتنی پڑتی جی. تو یہ جو خاندان ہے بزنجو خاندان، انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے اور یہ نہیں سوچا کہ اس کی کیا قیمت انہیں ادا کرنی پڑے گی. قیمت ادا کرتے رہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زندہ لوگ اسی طرح کے رہتے ہیں. اب دنیا کی ہزاروں سال کی ہسٹری دیکھ بلکہ یہ کہہ لوں کہ کھڑی کھڑی تو
आफत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे, है किसकी गर्दन पे खूने नाहक, ये फैसला लोग ही करेंगे। और वतन परस्तों को कह रहे हो वतन का दुश्मन डरो खुदा से, जो आज हमसे खता हुई है यही खता कल सभी करेंगे। लिए जो फिरते हैं तमग़े फन, रहे हैं जो हम ख्याले रहज़न, हमारी आज़ादियों के दुश्मन हमारी क्या राबरी करेंगे। और सितमगरों के सितम के आगे न सर झुका है न झुक सकेगा, शिआरे सादिक पे हम हैं नाज़ा, जो कह रहे हैं वही करेंगे इंशाअल्लाह। आपको तकलीफ नहीं है जिन्होंने 260 लोगों को जलाया कराची में, वो आपके साथ हुकूमत में बैठे हैं। आपको 11 आदमियों की तकलीफ है, 260 की नहीं है। बच्चे गरीब जला दिए, औरतें जला दी, मर्द जला दिए, उनकी तकलीफ। ये देखें हुकूमत क्या है, ये कैसे कैसे नमूना बिठाए हुए हैं यहाँ पे। इन्हें मॉडल टाउन तोते, ये तोते हैं, तोते ऐसी ही बातें करते हैं। फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है, और खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, और फर्क इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, तेगे बेदात पे या लाशे बिस्मिल पे जमे। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, और लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, खून देता है जल्लादों के मस्कन का सराग, और साजिशें लाख उड़ाती फिरें जुल्मत के नकाब, लेके हर बूंद निकलती है हथेली पे चिराग, और तुमने जिस खून को मक्तल में छुपाना चाहा, साहब थैंक यू। आज वो कूचा वो बाजार में आ निकला है, और कभी नारा कभी शोला कभी पत्थर बनकर गरीबा चाक गर्क लहुआ निकला। थैंक यू जी। सेनेटर सितारा आया। पहली आवाज ये है कि हमें कबूल नहीं जिंदगी असीरी की, हम आज तौक़ सलासिल को तोड़ डालेंगे, और हमारे देश से अग़यार हुक्मरां क्यों हो, हम अपने हाथ में लौहो कलम संभालेंगे। और फिजा मुहीब सही मरहले कठिन ही सही, सफीना हल्क़े तूफ़ान से हम निकालेंगे, और नुकूशे राह अगर तीरगी में डूब गए, हम अपने खून से हजारों दिए जला लेंगे। ये पहली आवाज है, तो उसके जवाब में मुझी की आवाज ये है कि जो लोग लेके उठे हैं अलम बगावत का, उन्हें खुद अपनी हलाकत पे नोहा खां कर दो, और बुझाओ गर्म सलाखों को उनकी आंखों में, ज़बानें खींच लो बुद्धि से बेजुबां कर दो, और हदफ बनाओ दिलों को सुलगते तीरों का, सना से जिस्मों को छेदो शिकस्त जां कर दो, तो महल सरा की हदों तक कोई पहुंच न सके, हर एक गांव पे ताजा सुलियां कर दो। तो फिर कश्मीरी मुजाहिदीन कहते हैं कि ये गम नहीं कि सरेदार आए जाते हैं जी, हमें खुशी है वतन को जगाए जाते हैं, और हमारे बात सही रात तो ढल जाएगी, दिलों में शम्मे जुनू तो जलाए जाते हैं, और जमा रहेंगी हमारे लहू की तहरीरें, सदा बहार शगुफे खिलाए जाते हैं, और हमारे नक्शे कदम देंगे मंजिलों का सराग, हमें शिकस्त ना होगी बताए जाते हैं। तो फिर जनाब इसका असर ये होता है कि नाना की लाश पड़ी हुई है, और उसके सीने पे उसका 3 साल का बच्चा बैठा रो रहा है। ये नवाज शरीफ से आप जरूर लड़ें, उसकी जात से बेशक लड़ें, उसके प्लेटलेट्स को हिट करें, उसकी सेहत को हिट करें, लेकिन आप उसके नजरिए से नहीं लड़ सकते। उसका नजरिया इसलिए नहीं लड़ सकते कि वो आफाकी नहीं है, उसने अजीमत का रास्ता इख्तियार किया। उसे तो यही कहा ना संगत कि आज तुम मुझसे मेरी दिल से क्या मांगते हो, हलफ़े ज़ैनो वफादारी जहाँ मांगते हो, तो जाओ ये चीज़ किसी विधा सरा से मांगो, ताइफे वालों से ढोलक की सदा से मांगो, और अपने दरबान से बदतर फुकारा से मांगो, मुफ्ती अब्दुल कवी से, और अपने दरबार के गूंगे शोरा
खुदा से मांगो, मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा, गर्दनें काट भी दोगे Thank you, वमा sir. अलैना इल्ला अल-बलाग। Senator Quratulain Mari. उनको क्यों नहीं? आप कहते मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, क्या छोड़ोगे नहीं? हम में कोई मतलब कि वो है ना, शौक से शहर पनाहों में लगा दो हमको। हम चटाने हैं, कोई रेत का साहिल तो नहीं, हम कोई दीवारें फांगने वाले लोग तो नहीं है भाईजान, कि जरा पुलिस का एक इंस्पेक्टर आया और 10 फुट की दीवार फांग के अपने बाप और बहनों को अकेला छोड़ के चले गए। हम उन लोगों में से नहीं है। हमने हर दौर में तजलील सही, हमने हर दौर के चेहरे को ज़िया बख्शी। हमारे से इस तरह से आप टकराएंगे, कल को आप रो रहे होंगे, आप यकीन करें। हम रोने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन मुझे इनके आंसू अभी नजर आ रहे हैं। इनके साथ बड़ा बुरा होना है, क्योंकि इस तरह से किसी हुकूमत ने किया नहीं है आज तक। आप एक साल से, 1.5 साल से लोगों को रखा हुआ है जेलों में, एक रुपए की करप्शन आपने किसी पे साबित नहीं की, और आप कहते हैं जी मैं एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ, मुसल्लत शुदा आदमी भी एनआरओ दे सकता है किसी को? जो किसी की उंगली पे बैठा हुआ हो, वो किसी को क्या हो, जिनकी हथेली में सुराख हजारों, वो देना भी चाहेंगे तो क्या देंगे किसी को? अब क्या दे सकते हैं? आप लेने वाले हैं, आपने सारी जिंदगी मांगा है, मंगतरल। आप क्या देंगे किसी को? देने वाले होते वही हैं जो 50 करोड़ 70 करोड़ का बनना था अस्पताल, बहौल आपके 50 करोड़ रुपए दे दिए। मैं 1-2 मिनट में से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे, है किसकी गर्दन पे खूने नाहक, ये फैसला लोग ही करेंगे। और वतन परस्तों को कह रहे हो वतन का दुश्मन, डरो खुदा से। जो आज हमसे खता हुई है यही खता कल सभी करेंगे। और लिए जो फिरते हैं तमग़े फन, रहे हैं जो हम ख्याले रहज़न, हमारी आज़ादियों के दुश्मन हमारी क्या राबरी करेंगे। और सितमगरों के सितम के आगे न सर झुका है न झुक सकेगा। शिआरे सादिक पे हम हैं नाज़ा, जो कह रहे हैं वही करेंगे इंशाअल्लाह।